Hello dear students, today we are going to start definite integration, chapter number 4, exercise 4.2. Now see fundamental theorem of integral calculus. So fundamental theorem of integral calculus, let f be the continuous function defined on interval AB, or you can say defined on closed interval AB, and if integral f of x dx equal to g of x plus c, then integral of a to b fx dx equals g of x plus c and its limit a to b, where a is known as lower limit and b is known as upper limit. So you can say integral of a to b fx dx equal to g of x plus c whole limit a to b, applied limit a to b, जो भी बोलो. Now it is equal to g of b plus c, replacing x by b. First we substitute the upper limit. कौन सी limit? Upper limit. Instead of x we write b. So this will be g of b plus c because it is a constant. So this will be same, minus lower limit g of a plus c. Now open the bracket. So g of b plus c minus g of a minus c. So plus c minus c get cancelled. We get g of b minus g of a. Therefore, integral of a to b fx dx equals g of b minus g of a. A note is given. Integral of a to b fx dx is defined as in the closed interval a to b. So, b is known as upper limit and a is known as lower limit. This is very important point. कि a is known as lower limit and b is known as upper limit. Now see some important properties of definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, क्या है और कैसे उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ये सभी डिस्कस करने के लिए हम लोग आगे के प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं. लेकिन इसके पहले हमें क्या करना चाहिए वो सब चीजें देख लो. कि सबसे पहले हमने एक फंक्शन अज्यूम किया. अज्यूम करने का फंक्शन यहाँ मीनिंग क्या है कि व्हाट इज दिस, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यू हैव स्टडीड in the chapter continuity, or you can say limits and continuity. Okay, defined on closed interval ab, and if integral of f of x dx equal to g of x plus c, then integral a to b fx dx equals g of x plus c and the limit a to b. तो ये रहा अपना प्रॉपर्टी थ्योरम, या ऐसा बोल सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम, जिस नाम से भी याद रखो, बट याद रखो क्योंकि हमें यही एक्सप्लेनेशन एंडिंग में करना है आफ्टर द इंटीग्रेशन. और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मींस इसमें लिमिट्स विल बी गिवन फॉर ऑल क्वेश्चंस. नाउ सी द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. यो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल a टू a fx dx इक्वल टू 0. मीन्स कोई भी इंटीग्रल में अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो यहाँ पर फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं. फंक्शन क्या है, कैसे है, वो नेगेटिव, पॉजिटिव, इनवर्स, ट्रिगो, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एनी फंक्शन, नो मीनिंग ऑफ दैट फंक्शन because limit is same, so its value will be 0 in all the cases. So integral a to a fx dx equal to 0, or you can say integral 1 to 1 fx dx is 0, integral 2 to 2 fx dx is 0, integral minus 2 to minus 2 fx dx is 0. Okay, these are the examples, but I'll take more examples in the exercises and for more explanations. Now see property number 2, integral of a to b fx dx equal to minus b to a fx dx. So what are the changes on both sides? If we say minus of integral b to a fx dx equal to a to b fx dx, also correct. तो क्या चेंज हुआ कि if we change the limit, if we interchange the limit, means upper to lower and lower to upper like this, so integral becomes negative, integral changes in opposite sign. जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना सा ही चेंज करना है. तो इफ वी चेंज द लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल चेंजेज इन साइन ओनली, वैल्यू विल बी सेम
मान लो कि हमको इसको पूरा सॉल्व करके वैल्यू अगर 10 आता है, ये सॉल्व करके -10 आएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। बट दे आर इक्वल, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ -10 आने का मतलब क्या होगा, -10 इंटू माइनस दैट इज +10, फिर से 10 इक्वल टू 10, सेम मीनिंग। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है, देखो बहुत ही केयरफुली देखो ध्यान से, कि इफ वी इंटरचेंज द वेरिएबल, if we interchange the variable applying same limit, so no change in the integration, इसके वैल्यू पर no change value of the integration you can say। so integral a to b f x dx equals integral a to b f of t dt। देखो यहाँ पर क्या है, f x dx, वेरिएबल क्या है x, यहाँ क्या है f t dt, बट लिमिट्स आर सेम on both sides, so no change in the value of integration। now see property number 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अपनी क्या बताती है यहाँ पर, कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी स्प्लिट इंटू सम ऑफ टू इंटीग्रल्स एज इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, where a is less than c is less than b। this means c lies between a and b, or you can say c belongs ab, c belongs closed interval ab। तो a and b, सपोज कर लो कि अगर वैल्यू ऑफ a 1 है और वैल्यू ऑफ b 2 है, ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो c का वैल्यू 1 से थोड़ा सा ग्रेटर मीन्स 1.1 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं डेसिमल पॉइंट में बिटवीन 1 एंड 2। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल एग्जांपल्स, कि 1.1, तो ऐसा ले सकते हो कि 1 to 1.1 एंड 1.1 to 2, या 1 to 1.5, 1.5 to 2, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मिडल, यू कैन टेक इन बिटवीन एनी वैल्यू। So where a is less than c is less than b, that is c belongs closed interval ab। फिर से देख लो कि इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल a to b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल इंटू डी एक्स। देखो सम ऑफ द लिमिट मीन्स a प्लस बी, लोअर प्लस अपर, माइनस एक्स, दैट इज क्या है ये वेरिएबल, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें भी इंटीग्रेशन में दोनों साइड कोई भी चेंजेस नहीं होता। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 इज वेरी हेल्पफुल, 5 and 6 बोथ। और वैसे प्रॉपर्टी नंबर 8 भी कम नहीं है, वो भी क्वेश्चंस बहुत ही मिलेंगे उसमें, आने वाली है अभी प्रॉपर्टी, वेट। नाउ सिक्स्थ वन, इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर हम लोग ऐसा बोलें कि यहाँ पर देखो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो क्या आएगा 0 प्लस a माइनस एक्स, दैट इज a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर 0 है लोअर लिमिट में, यहाँ पर a है। यहाँ भी सम ऑफ द लिमिट किया गया, और यहाँ भी अगर सम कर देते हो तो भी तो a माइनस एक्स डी एक्स ही मिलेगा। तो नो चेंज इन इंटीग्रल्स वैल्यू। नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर क्या चेंजेस हुए कि लिमिट क्या थी 0 to 2a, तो हमने लिमिट को क्या कर लिया उसका हाफ, अपर लिमिट का हाफ हो गया। तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स मेन फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये अपना जो ओल्ड लिमिट है वहां से सब्ट्रैक्ट किया गया वेरिएबल को, ठीक है। तो ये इस टर्म में भी स्प्लिट हो सकता है, वी गेट सेम वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स, अब देखो यहाँ पर इक्वल इक्वल 2 बार है, तो इट हैज 2 वैल्यूज। इस फंक्शन के कितने वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू है 2 टाइम्स या 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है वो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में। और यहाँ पर है माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड
फंक्शन। तो जो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दी रहेगी, कुछ तो यहाँ रहेगा, कोई ना कोई टर्म रहेगा, तो वो फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आने तक इंतजार करिए, बताता हूँ वहां पर, या अभी अगर जिसको जानना है तो सुन लीजिए एकदम अच्छे से ध्यान से कि रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स इफ वी गेट सेम वैल्यू मीन्स इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो दैट वन इज इवन फंक्शन, और अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो दैट वन इज ऑड फंक्शन और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आता है तो दैट इंटीग्रल बिकम्स ट्वाइस एंड लिमिट 0 टू ए, ये ध्यान देना, जैसे माइनस ए टू ए है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इवन के लिए ट्वाइस इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ऑड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली यू हैव टू राइट 0, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन से इट इज 0 आफ्टर चेकिंग द फंक्शन इफ इट इज एन ऑड। तो इसमें मैंने जैसा कि बताया कि प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सब उसके पहले जो फंडामेंटल थ्योरम दी गई है उसका भी यूज होता है क्वेश्चन में, हम लोग एंड में उसी के हेल्प से एक्सपेंड कर पाते हैं कि एफ ऑफ समथिंग अपर लिमिट माइनस समथिंग लोअर लिमिट, जो भी आता है वहां पर चेक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो सबसे पहले 4.2 एक्सरसाइज को चालू करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर कंटिन्यू इसका सोल्यूशन। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, I इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 9 x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो देखो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इट इज अलजेब्रिक और एक रेशियो में दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट करके देखते हैं क्या सोल्यूशन पॉसिबल है। यस, therefore I इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 9 x अपॉन रूट एक्स, देखो एक एक को सेपरेट कर लो, x अपॉन रूट एक्स बिकम्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स as it is into dx. Now integrate each term separately by using simple integration formula. So formula will be same for the indefinite integration, but at last you have to write or you have to apply the limit as per as given in the question. So see very carefully, integral of root x dx. So integral of root x we know 2 by 3 into x raised to 3 by 2, क्या होता है 2 by 3 into x raised to 3 by 2 and limit is 1 to 9 plus integral of 1 upon root x dx 2 root x, integral of 1 upon root x dx क्या होता है 2 root x and limit will be same 1 to 9। ये तो हम इंटीग्रेट कर लिए और उसकी लिमिट अभी सेम यहाँ पर एज इट इज लिख करके रखी गई है। नाउ टू सॉल्व इट, so 2 upon 3 as it is, here first we put अपर लिमिट, जैसा कि मैंने फंडामेंटल थ्योरम को एक्सप्लेन करने के टाइम बताया कि सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करोगे क्या हो जाएगा 9 रेज टू 3 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा 1 रेज टू 3 बाई 2। तो वी राइट हियर 9 रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 रेज टू 3 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सेकंड टर्म 2 is constant taken out, root x to the limit 1 to 9, so this will be root of 9 minus root of 1. Now to simplify 2 by 3 as it is, 9 raised to 3 by 2, 9 raised to 3 by 2 का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल क्यूब। तो सबसे पहले इस, क्योंकि देखो 3 अपॉन 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 रेज टू हाफ होल क्यूब। तो 9 रेज टू हाफ का मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 whole cube. The square root of 9 is what? 3. 3 cube is 27. Minus 1 raised to 3 by 2, or you can say 1 raised to anything is 1. तो चलो ये हो गया 27 minus 1 plus 2 as it is, square root of 9 is 3 minus square root of 1 is 1. Now simplify. So therefore I equal to 2 by 3 multiplied by 27 minus 1, that is 26. So 2 into 26, 52 upon 3 here. Plus 2 into 3 minus 1, that is 2 into 2 becomes 4. So 52 upon 3 plus 4, solving it or you can say simplifying it, we get 64 upon 3. क्या मिलेगा 64 upon 3. Therefore
इंटीग्रल 1 to 9 x plus 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स 64/3। तो अब ये हो गया, यहाँ पर हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट विल बी गिवन, लिमिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो इट्स आंसर विल बी कांस्टेंट। अब जो हमारे यहाँ पर आंसर्स में इनडेफिनेट में क्या आता था, हमेशा एक प्लस सी फिक्स वैल्यू होता था, राइट। तो प्लस सी हमने अभी अभी देखा कि फंडामेंटल थ्योरम में ही कट हो गया, प्लस सी माइनस सी विल बी कैंसल्ड, तो सी विल नॉट कम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट कम इन द डेफिनेट इंटीग्रल। ये सबको नोट कर लेना चाहिए और कभी भी भूल से भी प्लस सी नहीं लिखना चाहिए। ओके, एक बात हो गई। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन में जिस टर्म में है, जैसे अभी यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंटीग्रेट, तो कभी भी एक्स के फॉर्म में आंसर नहीं आने वाला है, ये भी नोट करके रखिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद समटाइम्स ध्यान नहीं देते, तो एक्स के फॉर्म में ऑप्शन अगर रखा हुआ है तो उसको भी टिक करके आ जाते हैं। नो, इट्स इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि वैल्यू विल बी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी विल नॉट कम, ये चीज ध्यान देना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, चलो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं फिर कि 2 लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। हम इसको 2 वेज में कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे मैं बताता हूं कि फैक्टराइज 6 whose sum is 5x। तो 3 and 2 are factors। देखो x square plus 3x plus 2x plus 6 and taking common we get factors of x square plus 5x plus 6 और x plus 3 and x plus 2। ये तो हमें मिल गया by factorization method, splitting the middle term you can say, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्लेनेशन, क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है यहाँ पर कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ इंटू मिडल टर्म होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू 5 क्या है, 5/2 और उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है, 25/4। तो इसी टर्म में क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6। तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 25/4 और प्लस 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4, दैट इज -1/2 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको एक्सपैंड करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला या जैसा भी क्वेश्चन बनता है, अगर ये टाइप का आता है तो समटाइम्स सपोज कर लो अगर फैक्टराइज नहीं होता कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, फैक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं भी वही मेथड फॉलो करता, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन अगर ये इजिली फैक्टराइज हो जाता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट हो जाता है, तो वी शुड अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कौन सी मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो कि हमारे लिए सबसे इजी मेथड होती है। अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव योर सोल्यूशन, आई विल प्रोवाइड योर सोल्यूशन। कोई भी अगर डाउट है पार्शियल फ्रैक्शन या किसी भी इंटीग्रल क्वेश्चन में, सो यू कैन आस्क। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो मेथड एक्सप्लेन किया, तो ये 2 मेथड में से एक मेथड का सोल्यूशन तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, और दूसरा मेथड अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट यू शुड ट्राई, सपोज कर लो अगर नहीं आता, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए, नो आंसर, नहीं समझ पाए हो तो कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन। तो चलो अभी फैक्टर्स मिल गए, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 3 1 upon x plus 3 into x plus 2 into dx। Now let 1 upon x plus 3 into x plus 2 equals a upon x plus 3 plus b upon x plus 2, where a and b are constants or you can say non-zero constants, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, इसके लिए इसको लिख सकते हो कि a and b are non-zero constants। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे मैंने सोल्यूशन में दिया और कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, तो स्टूडेंट को वहां पर नोट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ही सब लिख करके देंगे और स्टूडेंट केवल उसको जस्ट कॉपी करेंगे, नो, इट्स नॉट गुड। यू शुड लिसन explanation very carefully and note down the remaining terms which is not given in the solution. Now 1 equal to a multiplied by x plus 2
प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिनोमिनेटर विल बी कैंसल्ड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फुल एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो हमारे प्रीवियस वीडियोज में मैथ्स स्टैंडर्ड 12th में जा करके चेक करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच आर कॉन्स्टेंट्स, पुट x इक्वल टू -3, देयरफॉर ए, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए इंटू -3 प्लस टू प्लस बी इंटू -3 प्लस थ्री। तो ये दिस पॉट विल बी 0 एंड हियर -3 प्लस टू दैट इज -1 इंटू ए, तो माइनस ए इक्वल टू 1 दैट इज ए इक्वल टू -1। Now put x equal to -2, therefore 1 equal to a into -2 plus 2 plus b into -2 plus 3. Therefore 1 equal to 0 plus b into 1, that is b equal to 1. Okay, so we get constant terms a equal to -1 and b equal to 1. Therefore integral can be written as I equal to integral 2 to 3 इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस थ्री। यहाँ से देख सकते हो a अपॉन एक्स प्लस थ्री था, तो a की वैल्यू क्या मिली, -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस वैल्यू ऑफ b 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली बाय प्रॉपर फॉर्मूला। So integral of -1 upon x plus 3 becomes minus log of x plus 3. ठीक है, because integral of 1 upon x dx is log of x. So here it is minus log of x plus 3 limit 2 to 3 plus integral of 1 upon x plus 2 dx log of x plus 2 d x plus 2 and limit 2 to 3. Limit will be same. Now simplify minus sign as it is. Log of here 3 plus 3 becomes log 6 minus log 2 plus 3 that is log of 5 plus log of 3 plus 2 that is log 5 माइनस log of 2 plus 2 that is log of 4। क्योंकि हम लोग देखो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेपरेट ब्रैकेट्स आर हियर। तो सेपरेट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो माइनस साइन एज इट इज log m माइनस log n टाइप है, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, दैट इज log of 6 अपॉन 5 plus log m minus log n here also, so log of 5 upon 4. Now if we interchange, if we take reciprocal of this value, so log becomes पॉजिटिव, या log changes in opposite sign। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, और हम लोगों ने 6 अपॉन 5 को 5 अपॉन 6 कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो log ऑफ 5/6 प्लस log ऑफ 5 अपॉन 4। इससे बेनिफिट हुआ कि log m प्लस log n वैसे भी सॉल्व हो जाता, log m माइनस log n वापस अप्लाई करो तो भी यही आंसर मिलेगा, और यहाँ प्लस करके लोगे तो भी वही आंसर मिलेगा, डिपेंड ऑन यू। Therefore I equal to log of 5/6 into 5/4 becomes log of 25 upon 24। ठीक है, तो log m plus log n that is log m into n formula equals log 25 upon log 25 upon 24। So I equal to log 25 upon 24। Finished। Now see third question for the same exercise। Let I equal to integral 0 to pi/4 cot square x into dx। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखना, cot square x into dx। So it can be written as, क्यों written as, because integral of cot square x dx has no formula directly, so we should convert cot square x into its identity into its cosec square x minus 1। क्योंकि देखो 1 plus cot square x क्या होता है, cosec square x, तो यहाँ पर cot square x is cosec square x minus 1। So therefore I equal to 0 to pi/4 cosec square x minus 1 into dx। Now integrate each term। So I equal to integral of cosec square x is minus cot x 0 to pi/4। ठीक है, minus 1 dx, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx is x माइनस साइन एज इट इज, तो x लिमिट 0 to pi/4। अब करते हैं यहाँ पर इसका अप्लाई वैल्यू। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर कि माइनस साइन माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस को ले लेते हैं बाहर, चलो माइनस एज इट इज, तो कॉट ऑफ अपर लिमिट, तो कॉट एक्स है, तो कॉट ऑफ pi/4, कॉट pi/4 इज 1 माइनस कॉट 0, तो कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हम लोग बोलते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। यहाँ पर मैंने उसको सिंबल दे दिया इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, तो -1 माइनस 0, और सेकंड ब्रैकेट को देख लेते हैं, माइनस एक्स लिमिट क्या है, 0 to pi/4, so pi/4 माइनस 0,
तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि इफ यू ओपन द ब्रैकेट सो दिस विल बी -1 प्लस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 4 और यह है 0, उसको छोड़ दिया। तो माइनस साइन कॉमन वी गेट 1 प्लस पाई बाई 4 एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस इन्फिनिटी। तो समथिंग माइनस हो या समथिंग प्लस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी में थोड़ा सा माइनस करो या इन्फिनिटी में थोड़ा सा प्लस करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर आई इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। और जो स्टूडेंट अगर टेक्स्ट बुक से आंसर मैच कराना चाहते हैं तो उसमें क्या दिया है, माइनस ऑफ 1 प्लस पाई बाई 4, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ा गया है, जबकि प्लस इन्फिनिटी भी आता है वहां पर। इसके लिए क्या है, इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कहीं भी मल्टीपल चॉइस में आता है तो दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। या तो आंसर में ऐसा प्रिंट किया गया हो या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी गुड क्वेश्चन। Now see question number 4. Let I equal to integral of minus pi by 4 to pi by 4 1 upon 1 minus sin x dx। तो अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। और अभी अभी जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में डिस्कस भी किया था कि अगर लिमिट इक्वल है एंड अपोजिट इन साइन तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 वहां पर अप्लाई हो सकता है। यस श्योर, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, इमीडिएटली मैंने पहले क्या बताया, फंडामेंटल थ्योरम एंड देन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो इसी टाइप की है कि माइनस ए टू ए, राइट। तो हमारा एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो उसको हम चेक कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से ही सॉल्व करना बेटर समझा। इसके लिए यहाँ पर ये मेथड अप्लाई कर दिया और वो मेथड को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। देखो एफ एक्स इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स। तो हमें मिल रहा था 1 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हमें मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब इसमें इक्वल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि उसके इक्वल है या नेगेटिव साइन बाहर है या नहीं, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये रीजन है। तो ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। तो जहां पर आएगा मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा और वो प्रॉपर्टी ले करके वहां पर मैं आ जाऊंगा और बता दूंगा कि प्रॉपर्टी कैसे और क्यों अप्लाई की जाएगी। ओके, तो डोंट वरी। नाउ सी सोल्यूशन। फर्स्ट रेशनलाइजिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट्स कॉन्जुगेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, एंड 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अच्छी तरह से सबको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड साइन एक्स होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। So therefore I equal to integral minus pi by 4 to pi by 4 1 plus sin x upon 1 minus sin square x into dx. Now using some trigo identities or formula you can say, so I equal to minus pi by 4 to pi by 4 integral of, देखो 1 minus sin square x becomes cos square x. You know very well identity, sin square x plus cos square x is 1. Therefore 1 minus sin square x is cos square x. So 1 upon cos square x plus sin x upon cos square x, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया, cos square x। देखो अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट and solving definite integration, so do not write unnecessary steps। टाइम भी बचेगा और समझने में भी इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बहुत हम वास्ट बहुत लेंदी करके समझे। एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हो अगर कोई डाउट है तो। So therefore I equal to integral minus pi by 4 to pi by 4 1 upon cos square x is sec square x plus sin x upon cos x is tan x and 1 upon cos x remaining that is sec x. So this will be sec x into tan x into dx. तो इंटीग्रल हमें मिल गया माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx. Now integrate each by proper formula. So therefore I equal to integral of sec square x dx is tan x and integral of sec x into tan x is sec x.
minus pi by 4 to pi by 4. Now taking limit tan x pi by, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan pi by 4 that is 1 plus sec pi by 4 that is root 2 minus tan of minus pi by 4 is minus 1 and plus sec of minus pi by 4 is plus root 2. क्यों? क्योंकि देखो sec ऑफ माइनस पाई बाय 4 होता है sec पाई बाय 4, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा. ये रीजन होता है कि यहां पर हम माइनस साइन नहीं लिख सकते बिकॉज इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. तो sec ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज प्लस रूट 2 एंड sec ऑफ पाई बाय 4 इज ऑल्सो प्लस रूट 2, बोथ आर पॉजिटिव. इसके लिए देखो मैंने रीजन यहां पर प्रोवाइड कर दिया है कि sec ऑफ प्लस माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू रूट ऑफ 2 एंड tan पाई बाय 4 1, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज माइनस 1. तो सभी वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड कर दिया हूं जिससे किसी को कोई डाउट ना हो. नाउ ओपन द ब्रैकेट, वी गेट 1 plus root 2, here minus 1 that is plus 1 and minus plus root 2 that is minus root 2. So plus root 2 minus root 2 get cancelled. Here 1 plus 1 that is 2. Therefore I equal to 2, which is final answer for question number 4. Now see question number 5. Let I equal to integral 3 to 5, lower limit 3, upper limit 5, 1 upon square root of 2x plus 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स. तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज. तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3. दोनों रूट सेपरेट हैं, कंबाइंड नहीं है. ऐसा नहीं सोचना कि ये लाइन कंटिन्यू है, यहाँ पर रूट स्टॉप हो गया है और यहाँ से दूसरा रूट चालू हो गया है. तो चलो 1 इंटू रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 विल बी सेम अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वापस फार्मूला आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए तो रूट क्या हो गए, कैंसल्ड. तो रूट ऑफ 2x प्लस 3 दैट इज 2x प्लस 3 एंड रूट ऑफ 2x माइनस 3 होल स्क्वायर दैट इज 2x माइनस 3. तो फिर से नोट कर लो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 हो गया. तो चलो आगे चलते हैं. तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 3 टू 5 root of 2x plus 3 plus root of 2x minus 3 upon, here if we open the bracket and simplify we get 2x minus 2x will be 0 and plus 3 becomes 6. Root of 2x plus 3 plus root of 2x minus 3 entire upon 6 into dx. अब क्या करना है कि 6 is constant or taken out 1 upon 6. Integrate each separately. तो integral of root of 2x plus 3 is 2 upon 3 into 2x plus 3 whole raised to 3 by 2. क्यों ऐसा? देखो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 2 by 3 इंटू एक्स रेज टू 3 by 2. पहले समझो कि इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2. तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा इंटीग्रल में क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं क्योंकि वो डिवीजन में आता है और डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर में आता है. ये हो गया डिवाइड, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई है. 2 अपॉन 3 इंटू 2x प्लस 3 होल रेज टू 3 by 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स. तो ये भी सेम होगा, 2 अपॉन 3 इंटू 2x माइनस 3 होल रेज टू 3 by 2 एंड लिमिट 3 to 5. नाउ हियर 2 गोइंग बाय 2 एंड 2 गोइंग बाय 2. तो क्या बचता है, 1 by 3 1 by 3, टेकिंग 1 by 3 कॉमन. तो 1 अपॉन 6 इंटू 1 by 3 बिकम्स 1 अपॉन 18. ठीक है. नाउ taking the upper limit and lower limit for these two brackets and simplify we get. तो यहाँ पर देखो 5 अपर लिमिट है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज 13 रेज टू 3 by 2, 13 रेज टू 3 by 2 प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 होल रेज टू 3 by 2. तो 5 हो जाए 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 7 रेज टू 3 by 2 माइनस, फिर से अब लोअर लिमिट आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3. तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 9 रेज टू 3 by 2, 9 रेज टू 3 by 2 अभी अभी आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ था, उसका वैल्यू था वहां पर भी 27 और यहाँ पर भी है 27. तो 9 रेज टू 3 by 2 इज 27 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 3, 3 रेज टू 3 by 2. ये क्या है, 3 रेज टू 3 by 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 18 इंटू 13 रेज टू 3 by 2 कैन बी रिटन एज 13 रूट 13
plus 7 raised to 3 by 2 can be written as 7 root 7 minus 27 as it is, and here minus into plus becomes minus 3 raised to 3 by 2, that is 3 root 3. ठीक है, क्योंकि 3 by 2 में क्या है 1 plus half, तो 13 raised to 1 into 13 raised to half क्या होता है 13 root 13. ऐसे ही सभी को ब्रेक कर दिया गया. तो I equal to 1/18 into 13 root 3, sorry 13 root 13 plus 7 root 7 minus 27 minus 3 root 3. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5. तो डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टीज और ये टिल क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन का टिल क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और लेक्चर को आज क्लोज करते हैं. फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू मेथड्स, न्यू ट्रिक्स को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.